आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर की जानिब से आज बरोज़ जुमा बमकाम सरकस ग्राउंड करीमनगर में बज़मन सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत 3 रोज़ा एक्सपो 2025 के अनवान से आज बदस्त सूडा चेयरमैन कुमार रेड्डी नरेंद्र रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मजीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। మీరు మధ్యలో లాగండి ప్లీజ్, మధ్యలో లాగండి భయ 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 जनाब अब्बास सिंह साहब साबिर गड्डी नए करीमनगर, जनाब अहमद हुसैन साहब करीमनगर, जनाब उस्ताद अली साहब चेयरमैन। stones in their mouth they thrown, and the house of God, that is Kaaba, was saved. They are representing that story. ये एलिफेंट्स लेके वो काबे को डैमेज करने आया था। इस काबे को सेव करने के लिए आसमान से कुछ बर्ड्स आए थे, अबाबील बर्ड्स। दे थ्रोन द स्टोन्स एंड ये पूरे डेड हो गए जस्ट विद द स्मॉल स्टोन्स। तो ये एक स्टोरी है इस्लामिक हिस्ट्री की। दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टोरी। इट हैपेंड बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट। 13 ईयर्स प्रॉफिट मक्का में थे सब। उसके बाद वहाँ पे जब लोग आपको रहने नहीं दे रहे तो ही माइग्रेटेड टू मदीना। वहाँ की कुछ इवेंट्स की स्टोरी है, वहाँ पे कुछ बैटल्स में थे। बैटल की स्टोरी है, बैटल ऑफ बदर। द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट वाज ओनली 313 इन दैट बैटल, एंड हिज एनिमीज वाज ऑलमोस्ट 1000. Still, with the help of God, he got succeeded. This is one treaty of Hudaybiyah. Prophet was in Makkah for 13 years. As I told you, he was persecuted there very much. He migrated to Medina. Again, the people of Makkah attacked him. Those battles what we saw. First battle of Badr, second battle of Uhud. So this is one treaty Prophet did with them. For next 10 years, we won't fight. As I told you, from both sides in the span of 23 years, he fought almost over 80 battles. But at the cost of only 900 lives. He tried to save the lives of humanity. Even if he have ordered his followers, many people would have been killed. But he was very much clear that we are not in the world for killing the humanity. We are here to save extra. जी आप बोलिए। Here we have a model about youth going on the path of Muhammad. So here the first thing is we have two dimensions in one which is going towards the sunset and the other which is going towards the failure. There are two friends here. The good friend will always take to the correct path, which means we'll have a meaningful life with him, we'll have success with him, we'll have a goal motive with him. They are saying that all this what we are witnessing here, sir, all these are the same. They are saying that the honest and trustworthy merchant will be with the Prophet's footwear markets. Whoever is a good businessman, the trustworthy one, the one who does not deceive the people. On the day of judgment, he will be with the prophets. So you should be a good businessman without discipline. You can see that this side is going and that side is going up. You can see that this is heavy and that is light. Over here, this is talking about the judgment which we given our day. If you see over here, we have to be compassionate. That means we should think about others, not only about us. We should think of the good for everyone. We should have a cool mind. We should not be short-tempered about it. If we have a cool mind, we can take judgment in a right way and we can. Warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Umema Kanan of Nawabs International School. This is me, Huria Maheen of Nawabs International School. This is Umema Tasneen of Nawabs International School. Honorable companions of Islam, today we are going to mention a great story from Holy Quran, which Allah Almighty has narrated in Surah Al-Fil. This story is about the companions of the elephants. This teaches which is full of advices and lessons for us. The ruler of Yemen, Abraha, built a magnificent church in Sana'a and wanted people to leave Kaaba and perform Hajj in his church. But the Arabs considered the Kaaba the house of Allah subhanahu wa ta'ala. At this point, Abraha became angry and decided to demolish the Kaaba. So, he set out with a large army of elephants.
which Quran calls the companions of the elephants. When they approached the Makkah, the elephants used to sit on the ground and refused to move forward. Then Allah subhanahu wa ta'ala, when it was turned in the other direction, it would immediately move. Then this was a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala sent flocks of birds from the sky, which Quran calls birds of prey. Each bird had small stone in its beak and claws, which were made up of fire and clay. When these stones fell on the bodies of the soldier, their bodies were separated. In this way, Abraha and his army met a tragic end, and Allah subhanahu wa ta'ala protected his house, Kaaba, and thwarted a plot of his disbelievers. This incident teaches several important lessons. Allah protected his house, Kaaba, and his religion himself, no matter how great any power in the world is. Maybe it is nothing in the sight of Allah. This incident of the companions of the elephant is not only a sign of Allah's power, but also a refresher for our faith. We should trust in Allah, protect our religion, not be afraid of any great power, because with Allah no power can harm us. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ability to learn from the Holy Quran. Jazakallah. Jazakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Ayman Fatima. And myself Maria Manal from Nawabs International School. Today, inshallah, we are going to talk on major sins. The sins which are strictly avoided by messengers, our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Almighty Allah. Among them, alcohol. It is a major sin. It destroys health. Allah and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam are strictly told that it is forbidden due to its harmful effects like spiritual harm, social harm, mental and physical harm. Then second comes murder. Islam has equated the killing of one innocent person with the killing of all humanity. Murder and suicide. Suicide is also very wrong in Islam. Shirk. Shirk. Polytheism, also known as shirk. It is an unforgivable sin. Shirk means associating partners with Allah. Man and woman's attire. A man wearing woman's clothing, a woman wearing man's clothing are both considered major sins. Prophet ﷺ has cursed on them. Naptol mein kami. Naptol refers to the act of measuring and weighing. It is biggest sin because Allah told in Quran that reducing in measurements and weights is forbidden. Lying. Lying. It is a great sin and evil. Islam has declared truthfulness as a sign of faith and lying as a sign of hypocrisy. Next, interest. Citibank. Almighty Allah has declared that we have to never take interest. Jazakallahu khairan. मेरा नाम असद अहमद है। मैं बिला सूदी बैंक सोसाइटी की तरफ से मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। ये क्या है, ये बिला सूदी बैंक का है कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अल्लाह ताला यहाँ लिखा हुआ है यमहकुल्लाहु रिबा व यरबी सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। उसमें सदक़ात देने से आदमी का माल बढ़ता है और सूद से इंसान का माल घटता है। वो कैसे? जब आपके पास पैसे हों और उस पैसे का आपने अगर हक़ अदा किया यानी ज़कात दी, तो वो ज़कात देने से वो पैसा जो आपके पास है, ज़कात देने से वो पैसा आपके हक़ में गवाही देगा कि बारी ताला इसने जो पैसा कमाया, इस पैसे का इसने हक़ अदा किया और हक़ ये अदा किया कि हमको इसने पाक किया, तो लिहाजा वो पैसा हमारे हक़ में गवाही देंगे। अगर हमने पैसा है मेरे पास लेकिन हमने उसका माल का हक़ अदा नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, तो वो पैसा हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे और कहेगा कि बारी ताला तूने हमें इन्हें पैसे दिया था लेकिन इसने तेरा हक़ अदा नहीं किया था, मेरा हक़ अदा नहीं किया था। यानी गरीबों को, ज़रूरतमंदों को और मिस्कीनों को और कमज़ोरों को जो देना चाहिए वो नहीं दिया। इसी तरह आपके पास अगर सोना और चांदी है, हीरे और जवाहरात हैं, तो वो हीरे जवाहरात जो है आपके लिए अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए है अगर आपने उस हीरे और जवाहरात इन चीज़ों को अगर आपने हक़ अदा किया तो वही हीरे और जवाहरात आपके लिए नियामत होंगी और आपके हक़ में गवाही देंगे। अगर आपने उसको हक़ अदा नहीं किया और उसकी ज़कात नहीं निकाला तो वही आपके लिए जो है तो वबाल जान बन सकता है, नहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो माल अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। अच्छी कब है? जब आप उसका हक़ अदा करेंगे। अगर बुरी कब है? जब आप उसका हक़ अदा नहीं करेंगे तो बुरी चीज़ बन जाती है। वही आपके ख़िलाफ़ गवाही देंगे और वही हमारे हक़ में भी गवाही देंगे, लेकिन शर्त है कि उस माल का हम
हक अदा करे। वो हक ये है कि ज़कात दे, अपने माल को पाक करे, साफ़ करे, सदक़ात की सूरत में और खैरात की सूरत में। तो ये है। मेरा नाम हुस्ना तमकीन है, मैं GIO की एक एप्लीकेंट हूँ। तो हमारे थीम का नाम है गारे सूर। ये देखिए, ये गार है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन पनाह लेते। ये इसलिए लेते क्योंकि मक्का में जुल्म बहुत बढ़ जाता और उनकी साजिशें इस हद तक चले जाती कि नौज़ बिल्लाह वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए प्लान बनाते। जब अल्लाह ताला का हुक्म आता कि आप हिजरत के लिए रवाना हो जाएं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी दोस्त और पहले सहाबा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनके साथ रवाना हो जाते मदीना के लिए। नॉर्मल रूट यूज़ नहीं करते क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल रहता। बिल्कुल ऑपोजिट रूट से गारे सूर में 3 दिन के लिए पनाह लेते। इसमें एक वाक़या ऐसा भी रहता जब कुफारे मक्का बिल्कुल यहाँ पर आकर खड़े हो जाते कि अगर वो लोग नीचे देख लें तो उन्हें नजर आ जाते कि सहाबा वो लोग छुपे हुए हैं। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गम से कहते कि ए अल्लाह के रसूल, अब क्या करें? अगर वो पैरों की तरफ देख लें अपने तो हम तो नजर आ जाएंगे। जब अल्लाह के रसूल जवाब देते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गम ना करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। और वैसा ही होता जब अल्लाह ताला एक मकड़ी को हुक्म देते कि सामने जाला बना दो और बाजू में एक परिंदे को हुक्म देते कि अंडा डाल दो। उससे ऐसा दिखता कि ये गार कभी कोई यूज ही नहीं करे। अगर गार यूज होती तो वो हटना चाहिए था जाला, राइट। फिर आगे बढ़कर तो यहाँ पर जब कुफार यहाँ तक आते पर चले जाते क्योंकि वहाँ पर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे हुए रहते। यहाँ पे देखिए 2 रूट्स मौजूद है। ये रेड वाला नॉर्मल रूट है जो मक्का से मदीना के लिए इस्तेमाल होता था। ये ग्रीन वाला जो है वो हिजरत का रूट है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए यूज़ करे। यहाँ पर रास्ते में खुबा नाम के एक गांव में रुकते जहाँ पर इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर की जाती जिसे मस्जिद खुबा भी कहा जाता। फिर जब पूरा रास्ता जाकर मदीना में दाखिल होते, जब लोगों को मालूम होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं तो कई सारे लोग ईमान ले आते और इतने खुश हो जाते उनकी आमद से कि बाज़ारों में आकर पढ़ना शुरू कर देते तलाल बद्रू अलैना, मतलब जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ए रसूलुल्लाह, आप तो चांद की तरह हैं, आप हमारे अंधेरी जिंदगियों में उस चांद की रोशनी की तरह आए जैसा चांद आसमान में आता। मैं आज आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आने से पहले हमारी दुनिया कैसी थी, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे थे, उस चीज के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, जब लड़की पैदा होती थी तो वो लोग समझते थे कि हमसे कुछ गुनाह हो गया तो लड़की को जिंदा दफन किया जाता था। लड़कियों की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी। कब? जब 1400 साल से पहले की दुनिया बता रही हूँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे तो लड़कियों को जिंदा दफना दिया करते थे। और कि काबा है बेटा, काबे के करीब में बुत पूजा हुआ करती थी। बुत पूजा यानी कि टेम्पलों में अभी भी मंदिर में पूजा हो रही है ना, उसे बुत पूजा कहते हैं। बुत पूजा हुआ करती थी। और नाप तोल की बात, हर चीज में कमी और ज्यादा हुआ करता था, यानी कि चोरियां हुआ करती थी। कुछ भी खरीदो उसमें चोरी किया जाता था। और दूसरी बात आकर छोटी छोटी बातों पे कत्ले आम था। हर चीज पे छुरी या चाकू निकालकर कत्ल किया जाता था। ये सारी चीजें मैं आपको कब बता रही हूँ? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे। फिर 1400 साल की बात बता रही हूँ, पुरानी बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो हमें बताया गया ए लेगेसी ऑफ गाइडेंस एंड मेर्सी, एक दूसरे से मोहब्बत से कंपेनियन से रहना चाहिए। ए लेगेसी ऑफ प्रमोटेड फैमिली वैल्यूज, और फैमिली वैल्यूज के बारे में बताया गया। लड़कियों की अहमियत क्या थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेकबाल के लिए खड़ा हुआ करते थे। जब बीबी फातिमा घर आया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? खड़े होकर इस्तेकबाल किया करते थे। तो बेटी की अहमियत को बताया गया। जब बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था उसे रोका गया। कौन रोकने की शख्सियत कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्मर बने, जस्टिस के बारे में हमें समझाया, फेयरनेस के बारे में समझाया, गलत और सही में फैसला करना बताया। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल, झाड़ लगाइए। झाड़ लगाने से कितना फायदा है जो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता चुका है, झाड़ बता चुके हैं जो झाड़ लगाने से क्या फायदे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब सारी चीजें बताने वाली शख्सियत कौन है बेटा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बी लाउडर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इनकी सीरत के बारे में जानेंगे। ओके बेटा, ये मेरा टॉपिक था। मेरा नाम मसीरा फातिमा है, मैं जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे जमात के बाजी है मसरत बाजी, मैं उनके अंडर में काम करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दिलशाद मिसबा है और मैं GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट था असहाबे फील का। तो
अब्राहा नाम का एक यमन का एक बादशाह था जो मसीही यानी क्रिश्चियन था। उसने एक चर्च बनाया था और वो चाहता था कि दुनिया के सभी लोग उसी को अपना मुक़द्दस मकाम माने और उसी में इबादत करें। लेकिन अरब के लोग पहले की तरह ही काबा को अपना मुक़द्दस मकाम मानते रहे और इसी में इबादत और हज करते रहे। ये बात अब्राहा को इतनी पसंद ना आई और उसने फैसला किया कि वो काबा को ढा देगा। उसने अपनी लश्कर तैयार की जिसमें हज़ारों हाथियों और हज़ारों फौजियाँ थे। हाथियों में सबसे बड़े हाथी का नाम महमूद था। तो उस वक्त काबे के निगहबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। जब अब्राहा की लश्कर काबे के करीब आई तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करेगा, हम हमारी जानों की हिफाजत करेंगे। इतना कहकर सभी शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले गए। जब अब्राहा ने हुक्म दिया कि आगे बढ़ो और काबे को ढा दो तो हाथी एक कदम भी आगे ना बढ़ते पर दूसरी तरफ चल पड़ते। तभी अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई और आसमान से परिंदों को भेजा जिनका नाम अबाबील था। वो अपने पंजों और मुंह में छोटी छोटी कंकरियां पकड़े हुए थे और अबाबील ने एक एक कर अपनी मुंह और पंजों से पत्थरों को छोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में अब्राहा की लश्कर तबाह हो गई। इस तरह अल्लाह ने अपनी घर की हिफाजत की और इस साल को आमुल फील यानी हाथियों का साल के नाम से भी जाना जाता है और उस साल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। और अरब में काबे का एहतराम भी बढ़ गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो स्टाल आप देख रहे हैं ये आइडियल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है और हम हर किसी के लिए जो कोई भी ये मॉडल देखने के आ रहा है उसको हम एक चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हर किसी के लाइफ में अपना एक खुद का एक रोल मॉडल होता है। या तो किसी पर्सनैलिटी को देखकर मुतासिर होकर अपना रोल मॉडल बना लेता। रोल मॉडल यानी कि उसकी लाइफ के जैसी मेरी लाइफ होगी, उसके जैसा मैं ज़िंदगी गुजारूंगा, उसकी जैसी मैं कामयाबी हासिल करूंगा। कई सारे लोग पॉलिटिशियंस को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। कई सारे लोग किसी फिल्म से मुतासिर होकर उसके हीरोज से रोल मॉडल बना लेते हैं। कई सारे लोग हिस्टोरीज जितने आर्मी को लेकर कमांडरशिप जिसकी सबसे ज़्यादा बेहतर थी उनको रोल मॉडल बना लेते। लेकिन आपको मालूम है एक रोल मॉडल बनाने के लिए 4 स्टैंडर्ड्स है। वो स्टैंडर्ड पे कोई भी इंसान अगर उतरता है तो उसको हम रोल मॉडल कह सकते हैं। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है वो है हिस्टोरिकली प्रूवन, यानी कि उनके लाइफ के बारे में छोटी सी छोटी चीज़ भी क्लिस्टर और क्लियर होनी चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जो दूसरा स्टैंडर्ड है दैट इज़ कंप्लीट, हिज लाइफ शुड बी टोटली कंप्लीट, यानी कि उनकी लाइफ में अखलाक इतने बेहतर हो कोई दूसरी मिसाल उसके जैसी ना मिलती हो। ठीक है, उनका किरदार इतना बेहतर हो कि उनके दुश्मन भी उनके किरदार की गवाही दें, चाहे उनका आइडिया से वो लोग फॉलो ना करें, उससे मुतासिर ना हो, लेकिन उनके कैरेक्टर के ऊपर धब्बा उठा ना सके। और स्पिरिचुअली, अखलाक से, पॉलिटिकली, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से सबसे आला हो और उनकी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीट हो। ये दूसरा स्टैंडर्ड है किसी भी रोल मॉडल का। जो तीसरा स्टैंडर्ड है दैट इज़ कम्प्रीहेंसिव, यानी कि उनकी लाइफ में उन्होंने जो कोई भी मैसेज देना चाहे, कुछ भी आइडिया प्रेजेंट करना चाहे पूरी दुनिया के सामने, वो सिर्फ किसी इंसान के लिए नहीं होना चाहिए, किसी रेस के लिए नहीं होना चाहिए, किसी खास कौम के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके टीचिंग्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूरे मैनकाइंड के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीसरा स्टैंडर्ड है किसी भी रोल मॉडल का, दैट इज़ हिज लाइफ शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। और चौथी चीज़ है कि वो रोल मॉडल, ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि जो कोई भी टीचिंग्स वो पूरी लाइफ अपनी देता रहा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और उसकी मौत तक, ठीक है, और वो पूरी टीचिंग्स थ्योरी बस के थ्योरी ना है, ठीक है, बल्कि एक पूरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि उन्हें खुद अपनी अमली ज़िंदगी से पूरी दुनिया को ये बता सके कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ठीक है, और इसी स्टैंडर्ड पे उतरने वाली शख्सियत सिर्फ एक ही है और हम ये चैलेंज करते हैं कि वो है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली प्रूवन है, उन्होंने किस तरीके से उठते थे, किस तरीके से बैठते थे, छोटी छोटी चीज़ें भी डॉक्यूमेंटेड है और वेल प्रिजर्व्ड है, ना कि किसी दूसरी पर्सनालिटी के आपको हिस्ट्री में, तारीख में नहीं मिलता। ठीक है, और उनकी लाइफ पूरी कंप्लीट थी, यानी अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, पॉलिटिकली, एज ए कमांडर,
आप हर इंसान को उनके अंदर देख सकते। अगर आप बच्चे हैं तो आप ये नसीहत ले सकते हैं कि बचपन कैसा गुजारा जाए, अगर आप जवान हैं तो आप ये नसीहत ले सकते हैं कि जवानी किस तरीके से गुजारी जाए, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आप ये उनसे लेसन ले सकते हैं कि एक अच्छा पॉलिटिशियन किस तरीके से बना जाए। और अपना कैरेक्टर इतना बेहतर था प्रॉफिट मोहम्मद का कि अबू जहल भी गवाही देता था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ नहीं हूँ, उसके किरदार पे आवाज़ नहीं उठा रहा, बल्कि जो उन्हें जो मैसेज लेके आए प्रॉफिट मोहम्मद उस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। ये उनके दुश्मन भी गवाही देते थे। और एक कुरान की आयत भी है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बोल रहा कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये स्टैंडर्ड्स पे कौन उतरता है। हम ये चैलेंज करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स पर सिर्फ एक ही शख्सियत उतर सकती है, एक ही पर्सनालिटी उतर सकती है, और वो है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर।